were deleted, 30%. But whatever lesson I am taking, these are not deleted and important for this periodic test also fortnightly test. This is very important lesson, and you know that the time is very short. You know that a young seagull takes attempts and learns to fly. The lesson also shows how the necessity of food drives and forces one into action. What is important? What is important? First, food and clothes and residence. These are the main basics necessities of life. First, food, then clothing and residence. Okay? For every living being. And you must have seen that your parents also and sometimes encourage you, sometimes scold you, that you have to stand on your leg. Sometimes you neglect your duties, you don't study. At the time your father scolds you, I will turn you out of the house and you will work in any shop. Many types of threatening, but sometimes they encourage you also, because this is the role of parents. Role of parents in helping their offsprings. Offsprings means children, to overcome their fear. You know that there are two types of learners. Fast learner, Tiwari, Aman Kumar Tiwari. There are two types of learners, fast learner and slow learner. I think Aman Kishore Tiwari is a slow learner because all the time he disturbs himself and other students also. His voice always comes. हाँ silent, इसको remove करो. At first, every living being is frightened. And this is the story of young seagull. What is young seagull? This bird is found in the sea. And it has the long and pointed white wings and short legs. And color, white color. Okay? So I am starting the lesson. I have pre-informed you that this lesson will be taught, and open your book at page number 32. Okay? From this lesson, question will be asked in fortnightly test. Now I start the lesson. The young seagull was alone on his leash. You know that this is the leash in the house. Leash. And in the natural scenery, there was the ledge on the cliff, or you can say rock. You can see in the picture also that on the ledge one seagull is standing alone. Are you watching? Are you watching? Yes. Young, that is the ledge. And in the house also this is the ledge. You can say shelf. Okay, some word meanings I have written here. So young seagull was alone on his ledge. He was slow learner. Yes. All the participants, all the students mute themselves. When it is needed, then you will unmute. Lesson is going on and time is very short. And from this lesson, questions will be asked. Then you will know yourself what you have to do. I will work my duty. And that lesson is taught by the parents. What is the lesson? The basic need of life, that you have to work. If you don't work, you will suffer. Every parent wants to teach their children the basic lessons of life. What is the basic lesson of life? Only work. Suppose that what is your work? Study. If you don't study, you will failure. Because examination will be held in February. There is corona or something else, that doesn't matter. Everything will happen in time. In February, board exam will be conducted, and for that purpose 30% syllabus is deleted. So you will know.
So my duty is to make you aware. Your parents' duty is to make you aware. And what you have to do, you have to make yourself aware. So see here, young seagull was left alone on his ledge. His two brothers and sister had already flown away the day before. Yesterday, one day before, his two brothers and his little sister had already flown away. And you know that there are two types of learners, fast learner and slow learner. This young seagull was slow learner. He could not take the courage to take the first flight. Okay, he was very afraid. You must have seen in your house also, there is a small baby, and you give him support, and with the support of the finger the baby walks, and many times the baby falls down. You encourage, you give him biscuit, toffee, many things. It means the seagull was three brothers. Seagull were three brothers, and two brothers had already flown away, and his little sister had already flown away. He had been afraid to fly with them. Why? Because he was slow learner. Somehow, anyhow, when he had taken a little run forward, थोड़ा सा वो आगे आ गया लेज पर. आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो थोड़ा सा आगे आया है. Little run forward to the brink of the ledge, to the edge of the ledge, and attempted to flap his wings. He attempted to flutter his wings, and he became afraid. Why he was afraid? Because he was slow learner. The great expanse of sea, and from the ledge he saw the great expanse of sea. एकदम पूरा फैला हुआ था, miles down नीचे. उसको लगा कि if I take the attempt to fly, I may fall down. अगर मैं गिरता हूँ, मीलों नीचे है, तो मैं मर जाऊंगा. So for the fear of his life, he could not take a flight. This is the story. फर्स्ट फ्लाइट. हम लोग भी चलते थे बचपन में, आप भी चले थे बचपन में. छोटा बच्चा घर में चला है तो उसका फ्लाइट पहला अटेम्प्ट होता है, चलना, दौड़ना, गिरना, संभलना. And it was such a long way down, miles down, he felt certain. He felt certain means he was sure that his wings would never support him. उसको लगा कि if I take attempt to fly, मेरा विंग्स इतना छोटा है, हमको सपोर्ट नहीं करेगा. अगर सपोर्ट नहीं करता है तो मैं गिर जाऊंगा, और सी जो है कहाँ, माइल्स डाउन है, मैं गिरूंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा. सो फॉर द फियर ऑफ हिज लाइफ ही कुड नॉट टेक फ्लाइट. तो चूंकि जब वो हिम्मत नहीं कर पाया तो उसको लज्जा आई, इसलिए सो ही बेंट हिज हेड, शर्म से अपना हेड को नीचे कर लिया, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीज. फिर लेज में एक होल बना हुआ था, वहाँ पर रह गया. पेरेंट्स ने कहा देखो तुम्हारा बैकआउट कर देंगे, कोई तुमसे बात नहीं करेगा. हम लोग भी घर में ऐसा कहते हैं, इससे कोई नहीं बोलेगा, इससे कोई बात नहीं करेगा, इससे कोई कुछ नहीं देगा, टॉफ़ी नहीं देगा, बिस्किट नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा. तो सब ने बैकआउट कर दिया उसको. तो अपने लेज के होल में वो रहने के लिए चला गया. वेर ही स्लेप्ट एट नाइट. एक दिन पहले की बात है. ही वॉज लेफ्ट अलोन. इवन व्हेन मीन्स even though, even if, यद्यपि, each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter, उसके wings बहुत छोटे थे. किसके wing? उसकी छोटी बहन का. Then his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. उसके बहन, छोटी बहन, भाई भी. He failed to muster up courage, लेकिन वो अपने करेज को मास्टर नहीं कर पाया, गैदर नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया. To take that plunge, to take that dive, which appeared to him so desperate, which appeared to him so dangerous. Why it appeared to him so dangerous? Because the expanse of sea was miles down. His father and mother had come around, calling to him shrilly, calling to him in a sharp voice, upbraiding him, meaning is given, scolding him, not repent. कितना तुम कायर हो, तुम अटेम्प्ट नहीं ले सकते हो, तुम उड़ नहीं सकते हो.
एंड थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, और ये भी धमकी दिया कि तुमको भूखे मरने छोड़ देंगे ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो अटेम्प्ट नहीं लेता उड़ने का, उसको स्टार्व करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, कोई तुमको भोजन नहीं देगा, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, दैट वाज 24 आवर्स एगो, ये 24 घंटे पहले की बात है। एक दिन पहले सभी लोग उड़ गए थे और सारे लोग जो है सी पर आ गए थे। सी पर प्लेटो था। प्लेटो किसे कहते हैं? हाई एरिया ऑफ फ्लैट, हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, वो जमा जब होता है हवा के झोंका से बालू सब, वो प्लेटो को वहाँ पर बैठा हुआ था पैरेंट सब, वहीं से उसको वॉच कर रहा था व्हाट द यंग सीगल इज डूइंग। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before means yesterday. All day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting. Who was perfecting? His parents, mother and father, perfecting them in the art of flight. और दोनों माँ और पिताजी जो है उसको परफेक्ट कर रहे थे in the art of flight. कैसे उड़ना है? जैसे हम लोग को चलना सिखाया जाता है, बड़े लोग, पेरेंट्स लोग, भाई, बड़े बहन, तो उसको जो है वो उड़ने के लिए सिखा रहा है उसके पेरेंट्स। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, स्कीम मीन्स टू मूव लाइटली, अगर आप जो है जल पर आते हैं, वाटर पर आते हैं, सो हाउ टू वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, स्कीम करना सिखा रहे थे। हु वर परफेक्टिंग देम? पेरेंट्स। To move lightly just above a surface, you can see the meaning at the right side. He had in fact seen his older brother, तभी उसने देखा जो सबसे बड़ा भाई था, catch his first herring, ये small fish है, found in the sea, इसका जो fin होता है बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसने पहला शिकार मारा था उसके बड़े भाई ने, और सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और बड़ा भाई उसको ललचा भी रहा था यंग सीगल को, हु वाज लेफ्ट अलोन, वेयर ऑन द लेज, रॉक पर लेज बना हुआ था, वो ललचा भी, देखो हम खा रहे हैं, तुम केवल वहाँ से देखना, यू विल ओनली वॉच एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दिस फूड बिकॉज दिस इज माई हंट, आई हैव कॉट दिस फर्स्ट हेरिंग। सारे पेरेंट्स जो है उसको जो है एनकरेज कर रहे थे, किसको? बड़े भाई को। उसको क्या कर रहे थे? स्कॉल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे, क्योंकि वो क्या था? वो टिमिड था, कावर्ड था, डरपोक था। वो अपने पहले हेरिंग को मारा, पहले शिकार को मारा, एंड डिवॉर इट, उसको निगल गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, चारों तरफ से घेर लिया, सेलिब्रेट कर रहा था कि हाँ इसने पहला हेरिंग मारा, पहला शिकार किया है। रेजिंग ए प्राउड कैकल, रेजिंग ए प्राउड साउंड, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, और सारा फैमिली जो है प्लेटो पर आ गया था। व्हाट इज प्लेटो? आई हैव टोल्ड यू, ए हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड का हाई एरिया था, उस पर जो सारे बैठे हुए थे वहाँ से वाच कर रहे थे। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिप, और क्लिप के ठीक सामने, क्लिप समझ रहे हैं ना, रॉक के ठीक सामने वो प्लेटो था, वहाँ बैठे थे। टॉन्ट हिम, उसके ऊपर टॉन्ट कर रहे थे, देखो देखो, केवल वो देख रहा है, केवल ही इज ओनली वाचिंग, ही हैज नॉट करेज टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही हैज नॉट करेज टू फ्लैप हिज विंग्स। देखो कैसा वो टॉन्ट कर रहा है, उसको कमेंट कर रहा है, पासिंग द कमेंट विथ हिज कवाडिस, उसके टिमिडिटी के लिए, उसके कायरता के लिए। अब क्या हुआ? 24 घंटा सा भूखा था वो, सूर्य अब ऊपर चढ़ रहा है, एक तो भूखा, उसके बाद सूर्य चढ़ रहा है, जब सन हीट उस पर पड़ेगा, भूख और जो है उसकी बढ़ेगी, बेचैन हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस टू द यंग सीगर। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग, चमक रहा था, शाइनिंग ऑन हिज लेज, अब लेज पर सीधे पड़ रहा है सन दैट फेस द साउथ, और वो सन जो राइजिंग हुआ है इधर साउथ डायरेक्शन में उसको पड़ रहा है, जहाँ पर वो लेज था। लेज कहाँ पर था? क्लिप पर था। व्हाट इज क्लिप? क्लिप इज रॉक, और सीधे पड़ रहा है। एक तो भूखा था बेचारा, उस पर सनलाइट पड़ रहा है और बेचैन हो गया वो। Blazing on his legs that faced the south, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge. Brink means ledge. Brink means edge. किनारे पर एक बार फिर कोशिश किया वो कि अच्छा आते हैं, भूख तो लग गई है, कहीं हमारा
पेरेंट्स हमको दे दे। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई, एक लेग पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और दूसरा विंग जो है अपने विंग के अंदर छिपा लिया। दिस इज द वे ऑफ स्लीपिंग ए बर्ड। जब बर्ड सोता है तो क्या करता है, अपने एक लेग को विंग में छिपा लेता है। He closed one eye, then the other, एक आंख बंद की, दूसरी भी आंखें बंद कर ली, and pretended, और नाटक किया, acted falsely to be falling asleep, कि मैं सो रहा हूँ। अगर आप मेरा केयर नहीं कर रहे हैं, so I am also not going to take care of you all, मैं भी आपका केयर करने नहीं जा रहा हूँ। अगर आप नहीं केयर कर रहे हैं तो हम सोते आराम से, लेकिन आप जानते हैं कि भूखे पेट नींद भी नहीं आती है। Still they took no notice of him। कभी कभी होता है ना, घर में बच्चा रोता है और रोने लगता है कि नहीं हम जो है तो फिर आप होता नहीं, रो तुम जितना मर्जी हो, रो लो तुम, लेकिन कोई तुमसे बात करने वाला नहीं, कोई तुमको कुछ देने वाला नहीं है। इस प्रकार उसने भी नाटक किया कि मैं भी केयर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोगों ने कोई नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उनको बेसिक लेसन बताना था। द बेसिक लेसन्स ऑफ लाइफ फॉर द सर्वाइवल, कैसे तुमको जीना है। ह्यूमन बींग्स में तो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं, 25 साल 26 साल 30 साल तक उसको करते हैं, लेकिन बर्ड्स में और एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। जन्म लेता है, कुछ दिन जो है पेरेंट्स के केयर करते हैं, फिर बर्ड अपना जो है उड़ जाता है, अपना घोंसला खुद बना लेता है। एनिमल्स अपने पाँव पे खड़ा होता खुद करता है। हम लोग इतने सेल्फिश ह्यूमन बींग हैं कि बहुत समय तक अपने पेरेंट्स पर बोझ बने हुए रहते हैं। तो पेरेंट्स ने भी नोटिस नहीं लिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, और देखा उस दोनों भाइयों को, देखा वो प्लेटो पर लेटे हुए हैं, डॉजिंग, और they were napping, वो जो है आराम कर रहे थे, झपकी ले रहे थे। वो तो जान रहे थे यंग सीगल केवल सोने का नाटक कर रहा है, भूखे पेट उसको नींद आएगी नहीं, इसलिए जो है वो बोला देखो मैं कैसे सोता हूँ, डॉजिंग विद देयर हेड्स। आप जानते हैं अपने हेड को कहाँ छिपाते हैं वो लोग, विंग में, संक इनटू देयर नेक्स। हिज फादर वाज प्रीनिंग, और उसके पिताजी भी देख रहे नहीं, हम भी तुम्हारा कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। प्रीनिंग कर रहा है, कॉम्बिंग द फेदर्स, अपने बीक से अपने फेदर्स पे वो कॉम कर रहा है, कंघी कर रहा है उसको। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज लिटिल बैक, on his white back, only his mother was looking at him, only one was very watchful। आप जानते हैं माँ होती है, अगर कोई बच्चा भूखा रहता है तो माँ भी जो नहीं खाती है, वो बेचैन रहती है, केवल उसको माँ देख रही थी। अब माँ जो देख रही उसका ममता उभर के जो है सामने आ रहा था, उसकी छाती जो है आगे की ओर फैला हुआ था। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। एक तो प्लेटो अपने हाई एरिया फ्लैट लैंड होता है, उसके ऊपर भी सबसे ऊपर का जो भाग था वहाँ वो जो है बैठी हुई थी, ताकि वेरी क्लोजली शी कैन वॉच हर सन यंग सीगल, वो देख सके। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल व्हाइट हम्प ऑन द प्लेटो, हर व्हाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका ब्रेस्ट आगे की ओर उभरा हुआ था। क्यों? उसकी ममता आगे आ गई थी। नाउ एंड अगेन मीन्स टाइम एंड अगेन, बारम्बार। शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, एक फिश रखा हुआ था, उसको बार बार वो जो है टीयरिंग कर रही थी कि देखो अब मैं खाने जा रही हूँ, अगर तुम आ सकते हो तुम आ जाओ, नहीं तो आई विल इंजॉय माई सेल्फ। लेकिन वो खाना उसको था नहीं, माँ को केवल ललचाना था। फॉर द ग्रीड ऑफ द फिश इफ ही कैन टेक द फ्लाइट, अगर वो उड़ सके तो आ जाए, केवल ललचा रही थी। माँ कैसे खाएगी। शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, उसके कदमों के पास पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, ये पक्षी का स्वभाव होता है, जब वो खाती है या खाता है तो अपने बीक के दोनों साइड को रॉक पर वो जो है उसको जो है तेज कर रही थी, स्क्रैप कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जैसे वो भूखा यंग सीगल ने वो फिश को देखा, यू नो दैट द फिश इज द फेवरेट फूड ऑफ यंग सीगल और सीगल, देखा वो बेचैन हो गया। वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ द साइट ऑफ द फूड मेड द यंग सीगल रेस्टलेस एंड हाउ ही टुक द रिस्क ऑफ टेकिंग द फ्लाइट। हम बाद में क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे।
The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way. किस प्रकार से वो भी इसी प्रकार से फिश को टीयर करता था जैसे उसकी माँ कर रही है, स्क्रैपिंग हिज बीक now and again, और वह भी जो है टाइम टू टाइम जो है अपने बीक को वो तेज करता था, टू whet it, to sharpen it. अभी काश वो माँ के पास में रहता तो अपने बीक को वो शार्पन करता वो, और फिर टीयरिंग करता फिश को और खा लेता, लेकिन उसके पास में करेज नहीं है, वो उड़ के वहाँ जा नहीं सकता है। तो जब भूख से बेचैन हो गया तो वो रोना शुरू कर दिया, जैसे छोटा बच्चा रोता है, गा 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 गा। ही क्राइड बेगिंग, ही क्राइड, उसने मांगना शुरू कर दिया, टू ब्रिंग हिम सम फूड। माँ उसको रिस्पॉन्स करती है अपने लैंग्वेज में, गा कुल आह, सी स्क्रीन्ड बैक, वह भी चिल्लाई, डिरासिवली मॉकिंगली, चिढ़ाते हुए बोला, वहाँ से केवल देख रहे हो, आने की हिम्मत नहीं है, यहाँ आओ और लो, ये फूड तुम्हारा ही है, तुम इसको टीयरिंग करो, अपने बीक को स्क्रैप करो एंड यू एंजॉय योर फूड। डिरासिवली मॉकिंगली, चिढ़ाते हुए वो भी जवाब दिया, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली मीन्स हम्बलिंग, वो दीनतापूर्वक नम्रतापूर्वक मांगते रहा, रोते रहा, एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। ये ड्रामा 1-2 मिनट तक चलते रहा और उसने जो खुशी की चीख मारी, क्यों मारी? उसकी माँ आ रही थी विथ दैट पीस ऑफ फिश, माँ आ रही थी उसके पास में, उसको लगा नहीं, माँ हमको धोखा नहीं दे सकती है, मदर विल श्योर come to me. His mother had picked up a big piece of the fish and was flying across to him. उसकी ओर उड़ते हुए आ रही थी। He leaned out. जैसे उसने देखा यंग सीगल ने कि जब माँ आ रही है, वो आगे आ गया, एकदम ब्रिंक पर आ गया, एज पर आ गया, कहाँ उसको लेज के एज पर आ गया, किनारे आ गया माँ के पास में, वो माँ के नज़दीक में, जल्दी से आ जाए, भोजन आ जाए। टैपिंग हिज रॉक, और टैपिंग द रॉक को वो ऐसे थपथपा रहा है, छोटा बच्चा करता है कि हाँ हमको दो। हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके नज़दीक वो आना चाह रहा है, कैसे हम आ जाए, लेकिन यहाँ बैरियर है, अगर वो गिर गया एज से, किनारे से अगर गिर गया, ब्रिंक से गिर गया, तो मीलों वो चला जाएगा नीचे, और जाएगा नीचे तो वो मर जाएगा। ऐसा बर्ड के साथ में नहीं होता है। बट ही वॉज स्लो लर्नर एंड ही वॉज टिमिड इन नेचर, ही वॉज कवर्ड इन नेचर, स्वभाव से डरपोक था, इसलिए वहीं पर वो रह गया, वहीं किनारे से मांगते रह गया। अब जैसे उसकी माँ नज़दीक आती है, एकदम पास आ गई, उसकी माँ हॉल्ट कर गई, क्योंकि माँ को परफेक्ट करना था इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। नहीं, तुमको खुद से उड़ना है, मेरे पास आना है, तभी तुमको भोजन मिलेगा। आई एम गोइंग टू गिव यू फूड। But when she was just opposite to him, she halted, she stopped, her wings motionless. अब उसके विंग्स में कोई मोशन नहीं था। She stopped flying. उसने उड़ना बंद कर दिया था कि वो आए, भूख से बेचैन हो जाए, यंग सीगल वो आए मेरे पास में, तब उसको हम भोजन देंगे। The piece of fish in her beak, piece of fish उसके बीक में था, almost within reach of his beak. अब वो इतना सामने आ गई, वो उसके एकदम रीच में था कि अगर वो झपट्टा मार ले तो वो जो है फिश को स्नैच कर सकता है, इतना नज़दीक आ गई। दिस इज व्हाट हिज मदर वांटेड। उसने सोचा हो सकता है माँ हमको ललचा रही है, वेट किया। ही वेटेड ए मिनट मोमेंट इन सरप्राइज, क्यों माँ रुक गई है, वंडरिंग is thinking why she did not come near, and then maddened by hunger, भूख से पागल हो गया, क्योंकि वो 24 घंटे से भूखा था। माँ सामने में दिखा रही है कि ले लो, अगर तुमको हिम्मत है तो ले लो। एकदम वो लेज पर नहीं आ रही है, वो लेज पर नहीं आ रही है, सेल पर नहीं आ रही जहाँ पर बैठा हुआ है, एयर में ही है कि तुम आके लो। और वो जो है फिश जो है उसके रीच में है, उसके पहुँच में है, लेकिन वो जो है सोचता कि हम गिर नहीं जाएं। Wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. वो जो है फिश पर डाइव कर दिया, क्योंकि भूख से पागल हो गया था। और जैसे वो जो है डाइव किया, उसकी माँ came to one side and the young seagull fell downwards, outward. वो जो है डाउनवर्ड गिर गया,
बाहर के भाग में गिर गया। वो जानती थी माँ कि ये जैसे ही गिरेगा इसको जो है अपने स्वतः वेरी नेचुरली ही विल फ्लैप हिज विंग्स विल ऑटोमेटिकली स्प्रेड, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप देखते हैं जानवर जो पानी में डूबता नहीं है, उसको गॉड ने गिफ्ट दिया है, यू विल नेवर ड्रॉन इन द वाटर। उसी प्रकार से बर्ड को गिफ्ट मिला है कि आप जैसे परेशानी होगी उसका विंग्स जो है ऑटोमेटिकली फ्लैप हो जाएगा। इसलिए बहुत नेचुरली हम लोग पढ़ भी सकते हैं। हम सोचते हैं इस बात को हम लोग सीख नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जैसे सीखने का प्रयास करते हैं कोई चीज़, वेरी नेचुरली ऑल द थिंग्स आर सेट इन आवर माइंड, वेरी नेचुरल थिंग है ये। उसकी माँ एक और हट गई तो विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड्स, बाहर गिर गया, एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, इनटू द अनलिमिटेड एरिया। आप जानते हैं अनलिमिटेड एरिया माइल्स डाउन है। Then a monstrous terror, monster means great terror, seized him, caught him, and his heart stood still. उसका दिल का हार्ट बीटिंग एकदम स्टॉप हो गया। सोचा अरे ये मेरी माँ है तो कितनी निष्ठुर है, कितनी क्रूएल है। लगता है शी इज नॉट माई मदर, शी इज माई स्टेप मदर। देखो हमको मारना चाहती है, ये षड्यंत्र मेरी माँ ने किया था। ये हम भोजन दिखाएंगे, ये जो है बच्चा आएगा भोजन लेने के लिए, हमको हट जाना है, ये सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा। ये मेरी माँ रियल माँ हो नहीं सकती है, शी मस्ट बी माई स्टेप मदर। लेकिन वो स्टेप मदर नहीं थी, उसकी अपनी रियल मदर थी। एंड शी वांटेड टू परफेक्ट हिम इन द आर्ट ऑफ व्हाट, फ्लाइट। तो उसका दिल जो है एकदम धड़कना बंद हो गया। ही कुड हियर नथिंग। जब बहुत लोग फ्राइटेंड हो जाते हैं उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, केवल 1 मिनट रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और अगले ही क्षण उसने अनुभव किया कि उसके विंग्स बाहर की ओर फैल गए हैं। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings. और उसने देखा कि उसको विंग्स का जो ऊपरी भाग है वो एयर को टच कर रहा है। कटिंग थ्रू द एयर, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग। अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था क्योंकि उसका विंग्स जो है ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो गया था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो जरा सा भी भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, बिट मीन्स लिटिल डिजी, वो अनबैलेंस्ड फील किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, एक बार फिर उसने जो है विंग्स को फ्लैपिंग किया। जैसे फ्लैपिंग किया ही वेंट अपवर्ड्स, ऊपर की ओर चला गया। He flapped his wings once and he soared upwards. Ga ga ga. अब वो enjoy कर रहा है. Now he was enjoying the flight. He was singing the song. वो गाना गा रहा है. गा 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 गा. उसकी माँ भी रिस्पॉन्ड कर रही है. गा कोल आ. His mother stood past him. Stood past means pounced beyond him. उसकी माँ झपट्टा मार करके आगे आ गई. अगर कुछ प्रॉब्लम इसको होगा तो I will support him. She was there to give him moral support. यही moral support पेरेंट देते हैं. कभी डांटते हैं, कभी उसको encourage करते हैं, बोलते तुमको घर से निकाल देंगे. But what is the intention? That his children should stand on their own legs, अपने पाँव पे खड़े हो जाए. तो उसकी माँ भी जो है सूड पास्ट हिम, झपट्टा मार करके उसके आगे आ गई. हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, लाउड नॉइज से उसको जो है एनकरेज कर रही है. ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने फिर उसको आंसर किया. कैसे? गा गा गा. उसकी माँ कैसे आंसर कर रही है? गा कोल आ. देन हिज फादर फ्लू, फादर वहीं से वाच कर रहा है. कहाँ से? प्लेटो से. वो भी वाचफुल था वहाँ. Too poor, no? Now I am going to stop the class. Okay? Time is also up and it is 8:40. Okay? Only 2 minutes. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. उसके ऊपर पिताजी भी आ गए to give moral support. He saw his 2 brothers and his sister flying around him. उसके दोनों भाई और बहन भी आ गए moral support देने के लिए. Curveting, leaping like a horse. You can see in the meaning right side. उसके भाई बहन भी जो है वो उछल रहे थे हॉर्स की तरह. And banking, banking means flying with one wing higher than the other. आप देखते हैं बर्ड जब उड़ते हैं तो एक विंग ऊपर होता है, एक विंग नीचे होता है, एंजॉय करता है. सो ऑल द फैमिली was giving moral support. Parents were giving moral support.
his two brothers, and his little sister also. This time he had forgotten all the fear. He was enjoying the flight. He was singing the song ga 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 ga, and his mother was also responding him ga kol a, and this is how the young seagull learned to take the first flight. That's all. Thank you.